A very good morning to your children. Today we'll start a new chapter in your grammar book, which is chapter number 23, which is punctuation. Punctuation, as you already know, that in your previous classes you might have learned that in a sentence, when there is a pause, there is a gap, or to know the nature of the sentence, ki whether the sentence is being uh, over, या फिर there is a question mark, if there is a element of exclamation or anything, तो उसके लिए हम पंक्चुएशन मार्क्स लगाते हैं. पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कोटेशन मार्क्स, these are all punctuation marks. There might be some places where they might have given the exercises जहाँ पर name of places, person और famous monuments and all that has to be written in capital, but कई जगह वो small alphabet में लिख के दिया होता है, so that you have to rewrite and use the correct form of punctuation. So इसे punctuation कहते हैं. So in this unit we will learn the use of some common punctuation and punctuation marks and capital letters. So punctuation is the use of different marks like comma, full stop, question mark, exclamation mark, etc. to make the meaning of a sentence clear. उससे क्या होता है, पता चलता है कि sentence जो है वो किस तरीके से, एक छोटा सा pause होने की वजह से sentence काफ़ी change हो जाता है, और अगर वो pause ना हो, comma ना हो, तो then again sentence becomes, the meaning of sentence becomes different. If there is not a question mark, then we will not be able to understand what is the nature of sentence. If there is an exclamation mark, we will assume that there is a point of element of surprise. So punctuation marks tells the nature of the sentence. Read these funny sentences. Attention, toilets only for disabled elderly kids. So now isn't it funny, because there is no comma here. If it would have been written for disabled, comma, elderly kids. Okay, so without a comma it became a funny sentence, like cows, keep your pets under control. So here cows and comma is there, and keep your pets under control. So keep your pets under control is different, and cows, they have used a different sentence, like I like cooking my family and my pets. I like cooking, comma, my family and my pets. So if it would have been a comma नहीं होने की वजह से कैसा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली को कुक करना पसंद करता हूँ और अपने पेट्स को. कॉमा नहीं होने की वजह से द सेंटेंस हैज चेंज. सो दीज आर फनी सेंटेंसेज बिकॉज विदाउट पंक्चुएशन मार्क दे हैव देयर मीनिंग हैज गॉट चेंज. आई लाइक कुकिंग, कॉमा, माई फैमिली एंड माई पेट्स. उसका क्या क्या शौक है? कुकिंग शौक है, उसकी फैमिली और उसके पेट्स. लेट्स ईट किड्स. So let's eat, comma, kids let's eat, जैसे we are saying. So let's eat kids means हम बच्चों को खा जाते हैं. So it is a improper sentence because without punctuation its meaning has got changed. So that is the reason in this sentence they have told that to make the meaning of a sentence clear, punctuation marks are used. द रॉन्ग यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क कैन डू सच कन्फ्यूजन, है ना. इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है रॉन्ग यूज़ से. पंक्चुएशन ब्रिंग्स क्लैरिटी टू आवर थाट्स. हमारे थाट्स जो विचार है उसमें क्लैरिटी मतलब सही तरीके से उसमें क्या कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो क्लैरिटी लेके आते हैं. लेट्स करेक्ट दीज सेंटेंसेज बिफोर समवन एल्स गेट्स कन्फ्यूज. डू इट ऑन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. So with the help of your teacher you have to just correct the sentences. So read this poem based on punctuation. Now we have to read a poem which is based on punctuation. So the poem goes like this. A complete sentence tells a complete thought. It tells who or what the sentence is about. It begins with a it begins with a capital letter. A complete sentence always ends with a punctuation mark. सो द पोएम गोज़ लाइक दिस कि एक कंप्लीट जो पोएम है, एक सेंटेंस है, वो एक कंप्लीट थॉट के बारे में बताता है. वो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किस बारे में बोला गया है. इट बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर. वो कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है, और वो कंप्लीट सेंटेंस हमेशा एक पंक्चुएशन मार्क से एंड होता है, चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो. ठीक है. सो नाउ पीरियड, फुल स्टॉप. और फुल स्टॉप और पीरियड के बारे में क्या बताया गया है.
फुल स्टॉप मतलब पीरियड, या फुल स्टॉप का मतलब होता है व्हेन द सेंटेंस इज स्टॉपिंग, वो ओवर हो चुका है सेंटेंस। इफ़ यू राइट अ स्टेटमेंट और कमांड, जब आप कोई स्टेटमेंट और कमांड किसी को देते हो, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, योर सेंटेंस हैज़ अ स्मॉल फ्रेंड, उसका एक छोटा सा फ्रेंड है, इट इज़ टाइनी राउंड डॉट कॉल अ फुल स्टॉप एंड यू विल प्लेस इट ऑल एट द एंड। सो दीज आर स्मॉल एक्चुअली बेसिकली पोएम्स, वो बता रहे हैं कि फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है, वो एक सेंटेंस के फिनिश होने के बाद यूज होता है। इट इज़ अ वेरी टाइनी राउंड डॉट, है ना। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, व्हेन राइटिंग अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग देयर इज अ फनी मार्क टू नो, इट इज़ अ कर्व्ड कॉल अ क्वेश्चन मार्क, पुट इट एट द एंड एंड गो। सो देयर इज़ अ बेसिकली अ राइमिंग स्कीम दैट इट्स सेज कि जब हम किसी से कुछ अभी आस्क समथिंग, कुछ बोलते हैं, कुछ पूछते हैं, सो एक फ़नी मार्क होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, और वो लास्ट में एंड में लगाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, देर इज़ अ लाइन एंड बिलो दैट देर इज़ अ डॉट। सो हेल्प मी, ओ नो, हुर्रे, इट्स माई बर्थडे, दीज ऑल आर सरप्राइज एलिमेंट्स, है ना। हैप्पीनेस, पेन, जॉय, ये सब के, सो दीज ऑल आर एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किया हुआ है ना। So we won, let's have fun in the park. So these are all such kind of emotions. When writing to show an exciting thought, जब हम किसी excitement को हम show करते हैं, you should use an exclamation mark. So there is a rhyme that हम जब इस तरह की excitement show करते हैं तो we should use a exclamation mark. The full stop. Now full stop is used to mark the end of a statement or a command. It also follows most abbreviations. Full stop के साथ साथ कई तरह की एब्रीविएशंस भी यूज़ की जाती है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, है ना। रिस्पेक्ट योर नेशन, सो दे आर यूजिंग आफ्टर दैट फुल स्टॉप। ही इज़ द MLA ऑफ आर एरिया, सो एब्रीविएशन MLA ऑफ आर एरिया, फुल स्टॉप। सो दिस टाइप क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में पूछा जाता है ना। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन जैसे एंड हुआ। अब नाउ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड when we express some strong feeling, it is used at the end of the exclamation, जैसे wow what a catch. So when we are saying wow what a catch, so wow is a word which is which shows exclamation, so after wow we will use exclamation mark, what a catch, full stop, well done. So it, the whole thing is again used by exclamation mark, okay. द कॉमा इज़ यूज टू इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज, सबसे छोटा पॉज जो हम बीच में रुकते हैं उसके लिए कॉमा यूज़ होता है। इट सेपरेट्स थ्री और मोर सिंगल आइटम्स ऑन अ लिस्ट, वो थ्री या थ्री से ज़्यादा अगर सिंगल लिस्ट में अलग अलग आइटम्स हैं, लाइक वी शी लाइक सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड कुकिंग। सो अभी हमने सिंगिंग कॉमा ड्राइंग कॉमा पेंटिंग एंड कुकिंग, लास्ट वाले में एंड लग जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉज होते हैं या सेपरेट करने की चीज़ें होती है, उसके लिए भी कॉमा यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू सेपरेट सम एक्सप्रेशंस लाइक येस, नो, ओ, हाउ एवर, एक्सेट्रा। इस तरह के जो एक्सप्रेशन है इनको सेपरेट करने के लिए भी कॉमा यूज़ होता है। इट इज़ यूज जस्ट बिफोर कोटेशन मार्क्स, जैसे ही हम किसी के बोले हुए डायलॉग्स को यूज़ करते हैं, लिखते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, the teacher said go there and sit down. So the go there and sit down is the dialogue of a teacher. जब उसका dialogue as it is what the speaker says उस तरह से लिखा जाता है, उससे पहले कॉमा लिखा जाता है। कॉमा इज़ यूज बिफोर कोटेशन मार्क्स, जब उसके इन्वर्टेड कॉमास कोटेशन मार्क्स के अंदर उसके डायलॉग लिखा जाता है किसी की डायरेक्ट स्पीच, उससे पहले एक नॉर्मल कॉमा आता है। द टीचर सेड कॉमा, द स्टूडेंट सेट कॉमा, किसी की बोलने से पहले, ठीक है। सो यहाँ बताया है कहाँ कहाँ कॉमा यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है, रीता कॉमा कम हेयर, रीता कॉमा कम हेयर, रीता यहाँ आओ। सो हम पूरा एक साथ नहीं लिख सकते, विदाउट कॉमा हम नहीं लिख सकते रीता कम हेयर, it is not correct, okay. Priya said my favorite color is blue, Priya said, Priya ने बोला तो Priya said comma my favorite color is blue, full stop, quotation mark opened and closed, okay. So like that we have to do. Now the next is apostrophe. So apostrophe, what is apostrophe? I think children this chapter is little lengthy. I'll explain it two videos. One video will be there for the explanation and in the next one we'll do the exercise. Apostrophe is what? Apostrophe is used to show ownership of an object. Apostrophe जैसे सीताज,
सीता का, रीता का, अशोक का, किसी की ओनरशिप, किसी को बिलोंग करना, बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप को बताने के लिए अपोस्ट्रोफे यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो शोज़ कॉन्ट्रैक्शन, जब किसी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसके लिए भी अपोस्ट्रोफे यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज़ आदित्याज मैंशन, ये आदित्य का जैसे बिल्डिंग है या मैंशन है, बंगलो है, महल है। एंड ही इज़ मिस्टर ए एन झा सन, वो मिस्टर ए एन झा का बेटा है, आदित्य की मैंशन है। ये तो हो गया। आई एम प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, सो आई एम की जगह उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, एंड नाउ वी हैव रिटन आई apostrophe m, I am, so this is contraction. We have लिखने की जगह we और there is apostrophe ve, have हो जाएगा। ऐसे करके I am के लिए I apostrophe am, so these are contractions। और उसके अलावा हमारा apostrophe कहाँ यूज़ होता है? टू शो ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। ठीक है, जब किसी का कोई चीज़ होती है तब apostrophe होता है। Why don't you meet him? Why don't is again a contraction because otherwise it would have been written as do not, so उसकी जगह हमने don't लिखा है। ठीक है, नाउ द कोटेशन मार्क्स, और लास्ट में अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं? अगेन आई टोल्ड यू, व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट स्पीच, समबडी, द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर कोटेड इन कोटेशन मार्क्स। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड जब कोट किए जाते हैं तो उनको कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास से शुरू होते हैं, ओपनिंग कोटेशन मार्क्स एंड क्लोजिंग कोटेशन मार्क्स। ओपनिंग और क्लोजिंग कोटेशन मार्क के बीच में सेंटेंस होता है, और उस सेंटेंस के बाद जो भी लगना है, चाहे वो नॉर्मल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, और उसके बाद कोटेशन मार्क क्लोज होता है। ये रिमेंबर दिस थिंग, ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कोटेशन मार्क में लिख रहा है, बीच में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी आना है वो आएगा, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में कोटेशन मार्क्स आएंगे। सो with the next few exercises it will be more clear. I'll do, I'll just tell you one exercise based on this, and then I'll make another video on the next topic, and the same topic only, but from next page I'll make another video, because I don't want the video to be so long. So this is the first part of the chapter, punctuation, and the next video will be consisting the second half of the chapter topic. Okay, so what I'll do, I'll just explain you the random exercises, like random sentences we'll take. Insert punctuation mark wherever required. What I have done, I have already made for you, I have already written, I'll give you the answers, but now I'll discuss it with you, but you have to try it yourself. If I'll tell you everything, you will not be able to do your own exercise. Okay, जैसे first है children stop talking, so children stop talking, so what we'll do, children comma stop talking full stop. ठीक है, यहाँ पर ऐसे, राजू वाई आर यू लेट, राजू कॉमा वाई आर यू लेट। नाउ वाई आर यू लेट इज अ क्वेश्चन, सो वील राइट क्वेश्चन मार्क आफ्टर दैट। आरती, संगम, मोना एंड आशु आर फ्रेंड्स, आरती कॉमा संगम, मोना एंड आशु आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप। Next, wow, look at the fireworks. So wow is an exclamation, so after wow we'll write exclamatory mark, look at the fireworks full stop. Next is, this is Mr. Kapoor's office. So this is, Mr. will be MR, Mr. का MR will be capital only, जैसे लिखा है कपूर्स, कपूर का, so कपूर के बाद after R there will be apostrophe and S, ऑफिस फुल स्टॉप। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल सेंटेंस। सो ये हो गया। ऐसे ही मैं आपको एक और समझा देती हूँ, सेवेंथ वन। ड्राइवर सेड, व्हाट डिड ड्राइवर सेड? ड्राइवर सेड द रोड इज़ ब्लॉक्ड। ड्राइवर सेड कॉमा, पहले कॉमा लगेगा बिकॉज ड्राइवर ने क्या बोला, उसके बाद कॉमा लगता है। उसके बाद अब ये ड्राइवर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो कोट किए हैं। सो व्हाट विल डू, विल राइट कोटेशन मार्क, ओपनिंग कोटेशन मार्क, द रोड इज ब्लॉक्ड फुल स्टॉप, एंड देन विल क्लोज द कोटेशन मार्क। सो लाइक दिस चिल्ड्रन यू हैव टू डू। ऑलरेडी एग्जाम्पल्स आर गिवन, आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट योर सेल्फ। अपने आप ट्राई करेंगे, एंड यू विल राइट विथ योर पेंसिल्स कोटेशन मार्क्स अपने आप डाल के,
कोटेशन मार्क्स नहीं, पंक्चुएशन मार्क्स सारे जो भी हैं, जहाँ जहाँ जो जो रिक्वायर्ड है, you will put and you will show it to me. Okay, and the next day I'll provide you my answer key so that you can match it and tally it with your answers. Okay, so the next part of this punctuation mark next page से मैं because today we have done page number 102, so page number 103 and 104 I'll explain you in the next video so that it is clear to you and the video is not too long. Okay, then see you tomorrow. Bye bye and have a nice day.